نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجھے کافی میسیجز آئے ہیں اور کافی سوالات آئے ہیں اور زیادہ لوگوں نے شوق کا اظہار کیا ہے، تکلیف کا اظہار کیا ہے اور ایک فیلنگ آف ڈسگسٹنگنیس کا اظہار کیا ہے کہ ہاؤ آر سچ تھنگس پاسبل. اور سب سے زیادہ لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا یہ چیز جو ہے ڈز اٹ افیکٹ اس پرسنلی، اور یعنی کہ جیسے ہم سٹوریز سنتے ہیں نیوز میں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیوز میں کیا ہو رہا ہے فلاں کنٹری میں، وی نیور کنسیڈر دیٹ سم تھنگ لائک دس. فار ایگزامپل اب آپ نے سنا ہے کہ جی صومالیہ میں دیر از اے فیمن اور صومالیہ میں دیر از ڈراٹ. ہمارا وہ مائنڈ سیٹ ایز سچ ایز ہیومن بینگز ہے نہیں کہ ہم لوگ یہ سوچیں گے کہ اے ڈراٹ اور اے فیمن ان صومالیہ ول افیکٹ us at an individual or a personal level, but that is wrong. It does eventually end up affecting us. There's always a chain effect. جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے it has a chain effect and it will affect all of us one way or the other. So but that's another topic altogether. But اس پوائنٹ کے اوپر کہ خاص کر پیرنٹس نے، ماؤں نے مجھ سے بہت رابطہ کیا ہے and they've talked to me about this and they've asked me کہ does it affect us as parents, and especially people who are living in the subcontinent like India, Bangladesh, Pakistan, and even people living in Dubai. I mean, people living in Western countries, obviously they know کہ وہاں پہ یہ چیزیں rampant ہیں, so it will affect them. But for people living in different countries, وہ یہی سوال کر رہے ہیں کہ will it affect us. میں نے ان کو بھی وہی جواب دیا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں from the beginning میں نے بتایا ہے کہ آپ ٹل دی اینڈ ویڈیو سیریز دیکھیے انشاءاللہ جتنے بھی ہم لوگ اس کے اوپر بات کریں گے. اینڈ دین میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی کہ why is this issue so important to us, why is this the biggest fitna of our times, and most importantly how we can protect ourselves and our children from this fitna. ہم کیسے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں ڈسکس کریں گے. لیکن انڈرسٹینڈ دس کہ آپ لوگوں کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. یو آل، not only you all, we all have to be aware of what is going on around the world. And this آپ کو سمجھ آئے گی آگے چل کے ویڈیوز اور زیادہ جب میں بات کروں گی. مشکل ہوگا سننا، لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ سب ہمارے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم آنے والے فتنوں کے وقت میں ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، بالخصوص اپنے ایمان کو کیسے ہم محفوظ رکھ سکیں انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. ہم نے بات کری ہے فرسٹ آف آل ایپسٹین آئیلینڈ، ایپسٹین کیسز کے بارے میں، جیفری ایپسٹین کے بارے میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے مختصر سا. اچھا، ایک اور چیز میں اس دوران بتانا چاہتی ہوں کہ ویڈیو سیریز کی ضرورت کیوں پڑی. اچھا، اس کے اوپر بہت سی تحقیقات ہوئی ہے اور پورا سوشل میڈیا از بزنگ. پورے سوشل میڈیا پہ یہ کوریج ہے. لیکن جو دیسیز ہیں، جو نان انگلش اسپیکنگ پیپل ہیں، ان کی نظر سے زیادہ یہ ساری چیزیں گزری نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اس لیے یہ چیز اس لینگویج میں نے سوچا کہ میں سمپل لینگویج میں سمجھاؤں، کیونکہ ہمارے لیے بھی ایز پیرنٹس یہ جاننا بہت ضروری ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے مسئلے میں اتنے پڑے ہوئے ہیں، ہماری کنٹریز کی جو ایشوز ہیں، کہ جو ہو رہا ہے ہم اس کے اوپر غور نہیں دے پا رہے. تو یہ ایک مین وجہ تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے
to make Muslims in all parts of the world, irrespective of a language barrier, यानी कि सारे दुनिया के मुसलमान irrespective कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कौन सी ज़बान आप बोलते हैं, सबको इन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए. खैर शुरू करते हैं. तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि हु जेफरी एप्स्टीन वाज और एप्स्टीन आइलैंड के बारे में. सेकेंडली वी डिस्कस्ड अबाउट मेरे ख्याल से we discussed about adrenochrome, and then third yesterday we discussed about frazzle drip. हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए. आज का टॉपिक जो है जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी आप लोगों को मालूमात देना चाहती हूँ वो है द पिज़्ज़ा गेट स्कैंडल. पिज़्ज़ा गेट स्कैंडल क्या है? एक बंदा है जॉन पोडेस्टा, वो हिलरी क्लिंटन का स्पेशल एडवाइज़र रह चुका है, प्लस वो एडवाइज़र जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, इन सब का भी रह चुका है. उसकी कुछ पर्सनल फाइल्स लैपटॉप में लीक हो गई थी. विकीलीक्स ने उनको लीक कर दिया था. पब्लिक ने उन ईमेल्स के थ्रू जब वो पढ़ने लगे, जाने लगे, तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ कोड लैंग्वेज उसमें बताया जा रहा है. वर्ड्स लाइक पिज़्ज़ा, चिकन, हॉट डॉग और ग्रेवी एट्सेट्रा. और लोगों को समझ आ गई कि दिस वाज, कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ह्यूज स्केल पर एक सिटीज़न इन्वेस्टिगेशन था कि दुनिया के सारे सिटीजन्स ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया और उनको पता चला कि कोड नेम है. और इसमें मेरे ख़्याल से मैं इंशाल्लाह ताला वो लिस्ट इसके बाद एंड में मैं ऐड कर दूँगी ताकि आप लोगों को भी पता चले. तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक चिकन, अगर चिकन लिखते थे तो इट रेफ़र टू अ यंग गर्ल. हॉट डॉग रेफ़र करते थे तो इट रेफ़र टू अ यंग बॉय. यानी कि बच्चों के हवाले से ये वर्ड्स इस्तेमाल करे जा रहे थे और इनके साथ जो ज़्यादती करनी होती थी तो ये पिज़्ज़ा की तरह इसको ऑर्डर करते थे. ये क्या करते थे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते थे अंडर द गाइज ऑफ पिज़्ज़ा पार्लर्स. एक पिज़्ज़ा पार्लर था कॉल्ड कॉमेट पिज़्ज़ा पार्लर, जिसका मेरे ख्याल से जो ओनर था उसका भी मैं आपको लिंक इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगी. मुझे अभी फ़िल वक्त यूट्यूब मेरा चैनल पे लिंक्स प्रोवाइड नहीं करने दे रहा है. 1-2 दिन में वो इशू सॉल्व हो जाएगा तो मैं उसके लिंक्स विंक्स प्रोवाइड कर लूँगी. टिल देन मैं पिक्चर्स अपलोड कर लेती हूँ कि आप लोग ख़ुद भी इन्वेस्टिगेट कर सकें. तो ये जो बंदा था इसकी एक पिज़्ज़ा शॉप थी और इसकी छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप ने जितने भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको ह्यूज डोनेशंस दे रहा था, सच एज हिलरी क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा. जब इस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि इसके अंदर एक पेडोफाइल जिनको नहीं मालूम है मैं मुख्तसर से एक्सप्लेन करती हूँ वरना यू कैन लुक इट अप योरसेल्फ. पेडोफाइल का मतलब ये होता है छोटे बच्चों के साथ हराम का काम करने वालों को पेडोफाइल्स कहते हैं. तो पेडोफाइल ये ह्यूज रिंग था जहाँ पे नौमौलूद बच्चों से लेकर 14, 15, 16 साल के बच्चे, लड़के, लड़कियाँ, उन सबको ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके उनके साथ बुरे काम करके उनका कत्ल करते थे. और जैसे मैंने आपको बताया फिर वो फ्राज़ल ड्रिप वाला कि उनका खून पीते थे और भी बहुत काम करते थे. इसकी एक वीडियो सर्कुलेट हुई थी जहाँ पे बहुत से इम्पोर्टेंट लोग थे और क्या कहते हैं वो एक इवेंट वो अटेंड कर रहे थे जिसके अंदर वो बात कर रहे थे कि डू यू लाइक पिज़्ज़ा, आपको हॉट डॉग्स पसंद हैं, वुड यू लाइक फ्रेश चिकन विथ योर ग्रेवी एट्सेट्रा. और ये सारे कोड नेम्स थे. फिर इसके ऊपर क्या हुआ था कि एक साइन है जो FBI और जब इन्वेस्टिगेट किया था तो एक साइन है, वो साइन भी इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूँगी. तो वो साइन जो है वो अगर आप देखें कि जो डिज़नी पिक्चर्स हैं जैसे मोआना है और भी डिज़नी कि जितने भी आप देखें पोकाहोंटास, और उसके अंदर ये साइन जो है ये अक्सर नज़र आता है. और ये साइन जो है एक स्पेसिफ़िक पेडोफिलिया रिंग के लिए है.
تو यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं, और इसको कहते थे पिज़्ज़ा गेट स्कैंडल, क्योंकि जब हिलरी क्लिंटन के ईमेल्स, फिर उसने उसके बाद सारे अपने ईमेल्स डिलीट कर दिए, और एक सर्टेन साइन है, एक आँख छुपाने वाला, समथिंग लाइक दिस, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला पिक्चर जो है वो मैं वीडियो के एंड में कर दूंगी। आप देखें कि खाली आर्टिस्ट नहीं, लाइक एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियंस, लेकिन प्रेसिडेंट्स, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़, फुटबॉल प्लेयर्स, और इवन द पोप अपेरेंटली कोई ऐसा साइन करते हुए जो है उसका भी वो आया है। तो ये साइन जो है समथिंग हैज़ टू डू विद बीइंग पार्ट ऑफ दिस कल्ट। तो इस स्कैंडल को पिज़्ज़ा गेट स्कैंडल कहा गया था, और इसके थ्रू, और अभी रिसेंटली हाल ही मेरे ख़्याल से पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में यहूदियों का एक पर्टिकुलर, जैसे क्रिश्चियंस में डिफरेंट डिनोमिनेशंस होते हैं, वैसे यहूदियों में डिफरेंट डिनोमिनेशंस होते हैं। तो दो डिनोमिनेशंस के बीच में कोई लड़ाई हो रही थी, और उनके दौरान जो है एक वो मिला था अंडरग्राउंड टनल, और इस अंडरग्राउंड टनल में आप देखेंगे तो बेबी हाई चेयर्स भी पड़ी थी, जो अंडरग्राउंड टनल्स में उसकी ज़रूरत है नहीं। फिर उसके साथ साथ मैट्रेसेस पड़ी हुई मिली थी टनल्स में, अंडरग्राउंड टनल्स में बेड मैट्रेसेस, और जो स्टेन्ड थी उसके ऊपर किस चीज़ का स्टेन था अल्लाह आलम, अल्लाह माफ़ करे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले स्पीच में भी बताई थी कि ये सारी चीज़ें जो थी वो जाके कनेक्ट करती थी चिल्ड्रंस म्यूज़ियम में। वो कहते हैं एक सर्वाइवर ने ये भी बात कही है कि उसको किडनैप करते थे ये बच्चों की खेलने की जगहों में, जैसे डिज़नीलैंड हो गया, ये चिल्ड्रंस म्यूज़ियम हो गया, बच्चों को किडनैप करके उनको अंडरग्राउंड टनल से उनको ट्रैफिकिंग करते थे। और उसके बाद क्या करते थे वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वो तो आप समझें कि इंसानी हद और हदूद से तो बिल्कुल ही बाहर है। अल्लाह हमें बचाए। इसीलिए अपने बच्चों पर ख़ास नज़र रखिए, वो किधर जा रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, कैसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। और भले आपके घर और गाड़ी का फासला 1 फुट का क्यों ना हो, बच्चों का हाथ कभी ना छोड़ें। बच्चों का हाथ पकड़ के उनको तहफ़्फ़ुज़ से, उनको महफूज गाड़ी के अंदर बिठाएं, गाड़ी से बाहर निकालें, स्कूल के अंदर तक पहुंचाएं, स्कूल से बाहर लेकर जाएं। किसी को उनको 1 मिनट के लिए भी ऐसे नहीं छोड़ें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल बंदा पागल हो जाए, उनको कोई फ्रीडम नहीं दे, लेकिन आजकल की जो सूरत हाल है दुनिया में, आई थिंक इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। मैं यही कहूँगी। आगे हर इंसान की अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी अपब्रिंगिंग का तरीका होता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह बस यही दुआ है अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे। और इस वीडियो के एंड में मैं पिक्चर्स सब ऐड करूँगी और लिंक्स भी अगर हो सकी, तो उसके ऊपर अगर आप और पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि ये पिज़्ज़ा गेट स्कैंडल क्या है एग्जैक्टली में। जितना मैं समझा सकती हूँ पब्लिकली मैंने समझाया है। आगे आप लोग इसके ऊपर ख़ुद भी इन्वेस्टिगेट करें। आखिर में यही दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमारी औलाद को नेक करे, और हम सबको आने वाले फ़ितनों से, बुरे लोगों से, बुरे वक्त से, बुरे हालत से अल्लाह महफूज फ़रमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई हैं तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप हमारी एकेडमी को लाइक करें और इसको एक थम्स अप दें और इसको शेयर करें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम यही देखता है कि अगर इंटरेक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर अकाउंट से तो फिर उसको आगे ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे पैगाम से जितने लोगों का भी भला हो, जितने लोग दीन की तरफ आएँ, यही हमारा मकसद है, यही हमारा मिशन है उम्मेसार एकेडमी का। तो आप हमारे साथ इस काम में ताउन करिए और हमारी एकेडमी के मैसेज को प्लीज़ आगे जितना हो सके स्प्रेड करें। एंड लाइक आई सेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह टिल टुमारो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।